Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial. Today we will study differential equation. Yes, how to solve a differential equation of nth order. Up to third semester we have already studied about differential equation. Yes, third semester तक हम लोगों ने differential equation के बारे में पढ़ा है. And that what is a differential equation, how can we form a differential equation, how can we solve a differential equation. So a differential equation can be solved by three methods. Yes, our first method is variable separable. Second method is homogeneous equation. If the equation is in the form of homogeneous equation, our third is linear differential equation. Clear? So today we will study that these all differential equation of first order. These all, yes, all equation are of first order, but today we will study the differential equation of higher order. Yes, how can we solve the differential equation of higher order? किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, फर्स्ट डिग्री अगर है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री 1 है तो कोई डिग्री और ऑर्डर पढ़ा हुआ है ना आप सभी का सेमेस्टर थर्ड में. यस, इन थर्ड सेमेस्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री. Yes, so at first let's start from the begin. What is a differential equation? Let's start from the begin. Yes, so what is a differential equation? A differential equation in which it contains dependent variable, independent variable, dependent variables and derivative terms. Clear? So if a equation containing different dependent variables, independent variable and derivative term, then such equation is known as a differential equation. Like dy by dx plus 2y equals to x square. So here there is a independent variable, dependent variable and derivative term. So this is a differential equation. And what is order and degree? So order is the highest number of the derivative. Means if this become d2y by dx square, here suppose dy by dx, then in the whole equation we can see that this is second order derivative and this is first order derivative. Yes, this is second order derivative and this is first order derivative. So the highest order is what? In this equation the highest order is what? Means highest order of differentiation, that is 2 na. So its order is 2. And degree is what? So degree is the power of highest order derivative. So power of this is what? This is nothing, means what? 1. So degree become 1. Clear? So differential equation are of two types. First one is ordinary differential equation and second one is partial differential equation. Ordinary differential equation, if the whole equation is differentiable with respect to only one independent variable, then it is ordinary differential equation. And if the whole differential equation is differentiable with respect to more than one independent variable, or we can say that if a differential equation is differentiable more than one independent variable, then such differential equation is known as partial differential equation. Yeah, I can show you an example. Yes, so if suppose d3y by dx square plus 2 equal to 0, so what will be the order? So order is 3. So order is 3. Yes, and degree is what? Degree is 1 because the power of this is 1. Yes, so degree is 1. And now this is third order differential equation. And in this equation we can see that this whole differential equation is differentiable with respect to x only. That is only one independent variable, that is x. If we add here, suppose d3z or d2z by dy square, this d2z, okay, d2z by dy square means this one differential equation is differentiable with respect to x and y both. So more than one independent variable,
x is an independent variable and y is also the independent variable, is it? Yeah, we can write here like u and z. Suppose u and z be the dependent variable. Suppose u and z be the dependent variable and x and y be the independent variable. Suppose this equation, suppose u is equals to function of some x and y, and again z is equals to function of x and y. So here two independent variable, yes, and whole differential equation, whole equation is differentiable with respect to x and y both. So this is a partial differential equation. Means very easy. If the whole equation is differentiable with respect to only one independent variable, then this is ordinary differential equation, and if the whole equation is differentiable with respect to more than one independent variable, then this is a partial differential equation. Clear? So today we will study that how can we solve higher order differential equation. Clear? How can we solve higher order differential equation? If the differential equation is of first order, then we can easily solve it by either of variable separable or homogeneous or linear differential equation, or by making the differential equation in the exact form, or by making the differential equation is reducible. Yes, reducible to linear or reducible to homogeneous. So we can solve. But if the differential equation is like this, suppose it's d4y by dx4 plus d2y by dx square plus 4 equal to 0, or plus 4 equals to suppose 2x. So how can we solve this differential equation? So while solving of this differential equation, this is LHS part and this is what? RHS part. So at first we have to convert this differential equation into auxiliary equation, and then we find complementary function of LHS. Yes, complementary function of LHS, and then a particular integral of RHS. Please note, we will find complementary function of LHS and a particular integral of RHS. So this is the solution. Complementary function is the solution of RHS part and particular integral is the solution of LHS part, and then we add. And then for complete solution means the solution of the whole differential equation. Yes, the solution of the whole differential equation, and the solution of the whole differential equation is known as complete solution, and our complete solution is equals to solution of LHS and solution of RHS, and then we add. So solution of LHS means what? The solution of LHS means complementary function, and solution of RHS means what? Solution of RHS means particular integral. So we add complementary function and particular integral. Clear? Means बहुत ही easy है कि अगर आपको इस तरीके के आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर को सीखा है, फर्स्ट ऑर्डर आप लोग बाय होमोजीनियस निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर आप लीनियर निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर आप वेरिएबल सेपरेबल निकाल सकते हो, या फिर आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, या फिर आप एग्जैक्ट सीखे हो. तो दीज आर द टाइप्स दैट हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट what will we do if the differential equation is nth order? This differential equation is fourth order, na? Because the highest derivative is what? 4. So the differential equation is fourth order. So how can we solve the fourth order differential equation? तो for this, अगर इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? इसके लिए हमें दो चीज सीखना पड़ेगा, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस का निकालते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके बाद हम आरएचएस का निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, और उसके बाद हम दोनों को ऐड करते हैं. क्योंकि किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए इसी का ये एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. हायर क्यों? मोर देन वन हो गया, ऑर्डर अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो हायर ऑर्डर कहलाता है. ठीक है,
ऑर्डर अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो हायर ऑर्डर कहलाता है। तो अगर आपको इसका निकालना है डिफरेंस, इसका निकालना है सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या, इसका निकालेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आप एग्जांपल में बिल्कुल अच्छे समझ जाओगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सिखाऊंगी। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। Clear? So at first we will learn complementary function. So our today's class is based on complementary function. क्लियर। अब बोलोगे कि मैम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बताना था तो इतना सारा ड्रामा क्यों? तो ये ड्रामा नहीं है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसका डेफिनेशन, उसका ऑर्डर, मैं बोलूंगी कि हायर ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो आप जानोगे तब तो कि हायर ऑर्डर क्या होता है, तब तो आप जानोगे कि हायर ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो यानी कि अगर एक बार से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना किया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आज हम लोग वो सीखेंगे। क्लियर कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट का देखते हैं। चलिए, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का मान लेते हैं। ये आप यहां देख रहे हो a नॉट इंटू nth डेरिवेटिव, a1 इंटू n माइनस वन डेरिवेटिव, a2 इंटू दिस, मतलब ये एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जहां पे a नॉट, a1, a2 ये सारे कांस्टेंट है या फिर x के फंक्शंस है। ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर x के फंक्शंस भी हो सकते हैं। और ये मेरा इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो n है ना, जी हाँ। और यहाँ पर इक्वल्स टू मैंने x लिखा है, तो ये x क्या हो सकता है, x फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो ये मेरा x का फंक्शन हो जाएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को ना ऑर्डिनरी के लिए सिखा रही हूँ, पार्शियल नहीं सिखा रही हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि अभी पार्शियल बाद में पार्शियल का यूज नहीं करना, अभी हम लोग ऑर्डिनरी सीखेंगे। जो हम लोग ऑर्डिनरी सीखेंगे फिर हम लोग इसको पार्शियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस सेम है, सिर्फ हाँ थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि पार्शियल का पार्शियल की अगर मैं बात करती हूँ तो पार्शियल मीन्स आपका, जी हाँ, सिर्फ एक पार्शियल मीन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मैं बात करती हूँ ऑर्डिनरी की तो इसका मतलब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए, तो फिर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा है, तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन टू पार्ट्स, वो दो पार्ट में होगा। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हम लोग CF डिनोट करते हैं, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम लोग PI से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर मान लीजिए u को हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से और v को हम डिनोट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल से, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, u प्लस b। जैसे आप इस LHS पार्ट का निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इस RHS पार्ट का आप निकालोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और फिर दोनों को ऐड करोगे तब तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। बस यही हमारा है। क्लियर। अच्छा, इसमें आपको कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, d बाई डी एक्स का मतलब d होता है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब d स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियसली n का मतलब nth होगा, ये जनरलाइजेशन है। और अगर d का मतलब डिफरेंशिएशन है तो 1 बाई डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो d इनवर्स यानी कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या था, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैंने स्टेप 1 में क्या लिखा है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, किसका, तो राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड को हम जीरो मान, देखिए ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, और राइट हैंड साइड को हम लोग जीरो मान के चलते हैं। आपने देखा था कि अभी पीछे हम लोग जो जनरल इक्वेशन लिखे थे nth ऑर्डर का, उसमें हमारा राइट हैंड साइड में x था, तो उस x को हम जीरो मान के चलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। आप यहां देखो, RHS में हमारा क्या है, x है, इस x को हम जीरो मान के चलेंगे। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इस x को हम क्या मान के चलेंगे, जीरो, क्योंकि हमें सिर्फ इसका निकालना है। ठीक है, और जब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो उसमें दोनों का यूज करते हैं, तो वो तो बाद की बात है, पहले हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद RHS साइड में जो भी रहेगा, वट एवर बी द RHS साइड, ठीक है, हम वी टेक दिस जीरो। तो मैंने वही लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड को जीरो करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 2 में आप देख पा रहे हो,
पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। जी हाँ, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। और स्टेप 3 हमारा क्या होता है, तो हम लोग ऐड कर देते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और पर्टिकुलर इंटीग्रल को। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे। सो मेथड ऑफ फाइंडिंग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 टाइप है। या तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना हम लोग 4 टाइप से निकालते हैं। ठीक है, या तो रूट्स हमारा रियल होगा या तो रूट्स हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर रूट्स रियल है तो वो या तो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो भी वो तो इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। सपोज अगर रूट्स इक्वल है, इक्वल मतलब क्या, मान लो सेकंड ऑर्डर डिग्री है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिग्री है तो 2 रूट्स निकलेंगे। मान लो 2 रूट्स इक्वल है, सपोज 2 2, ये जरूरी नहीं कि 2 2 ही, सपोज 1 1 इक्वल आएगा। ऐसा भी हो सकता है, आता है ना ऐसा मान लीजिए आपका x माइनस 1 का मैंने होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1 1 हो जाएगा। 1 1 आप बोलोगे 2 क्यों लिया मैम, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, डिग्री 2 है मतलब इसका 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 और 2 निकलेगा। तो ये अगर इस तरह केस है तो ये रियल और अनइक्वल है, और अगर इस तरीके का केस है तो ये रियल और इक्वल है। सिमिलरली कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए -2 प्लस माइनस अंडर रूट, मान लो कि आ गया -5, मान लो -5 आ गया बाय 2। ठीक है, तो -2 प्लस -5 है, तो -5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का तो रूट 5 हो जाएगा, लेकिन -1 का रूट मतलब क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, इतना बाय 2। तो आप देख पा रहे हो, एक बार -2 प्लस रूट 5 i बाय 2, एक बार -2 माइनस रूट 5 i बाय 2। ये i का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स है, i का मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में भी आप ध्यान दो अगर, तो आई का मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स में भी डिफरेंट है, -2 प्लस 5i बाय 2 और -2 माइनस 5i बाय 2, यानी कि कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल है। यही अगर सपोज ऐसा होता, सपोज इसका एक मिनट, सपोज इसका b के जगह पे 0 होता। ठीक है, सो प्लस -5 अंडर रूट बाय 2, तो इसका मतलब क्या, 0 को आप छोड़ दो तो ये प्लस माइनस होता। जी हाँ, तो यहाँ हमारा प्लस माइनस रूट 5i बाय 2, तो भी एक बार प्लस रूट 5i बाय 2 और माइनस रूट 5i बाय 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो इसका मतलब अगेन ये कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल रूट आ गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कुछ भी x माइनस 2i का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, 2i कॉमा 2i, तो ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि i है तो कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स के साथ ही हमारा ये, जी हाँ, इक्वल है। तो ये कॉम्प्लेक्स अनइक्वल है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वल है, ये कॉम्प्लेक्स अनइक्वल है, और ये हमारा रियल इक्वल है, ये हमारा रियल अनइक्वल है। तो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो मेथड ऑफ फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहला केस है जब रूट्स हमारा रियल और अनइक्वल है। सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब मेरे रूट्स हैं। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, आप इसको जो बोलो, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलो, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलो, चलो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका हो जाएगा C1 e टू दी पावर 3 रूट्स है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो C1 e टू दी पावर अल्फा 1x प्लस C2 e टू दी पावर अल्फा 2x प्लस C3 e टू दी पावर अल्फा 3x। ठीक है, यहाँ पर C1 C2 C3 मेरे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अगेन अगर आपका रूट्स आपका रियल और इक्वल है, रियल और क्या है, इक्वल है, तो इस केस में मान लो कि डिग्री 2 है। ठीक है, सेकंड डिग्री है, और सेकंड डिग्री मैंने क्यों बोला, सपोज वहां देखा ना मैंने 1 1 आया या 2 2 आया, तो सेकंड डिग्री था तो 2 2 आया। अगर ये थर्ड डिग्री होता तो 2 2 2 होता, 3 बार 2 होता। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लीजिए अल्फा इज द रिपीटेड रूट, मतलब जैसे वहां पर 1 रिपीट कर रहा था ना, उसी तरह से यहाँ पर अल्फा रिपीट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर अल्फा x। अगर ये डिग्री थर्ड होता और अल्फा रिपीटेड रूट्स होता तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, एक एक करके बढ़ रहा है, यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ x का पावर 1 है, इसके बाद C3x का पावर 2 हो जाएगा इंटू e टू द पावर अल्फा x हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमारा रूट्स अगर कंजुगेट है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है और नॉन रिपीटेड है, अभी देखा ना, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा मान लेते हैं हमारा रूट्स है।
ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसमें बहुत सारे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं C1 इंटू ई टू दी पावर, ये रूट से पूरा, तो C1 इंटू ई टू दी पावर ये पूरा प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर ये पूरा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर, देखिए इसके रियल पार्ट को हम लोग ई के साथ लेते हैं, रियल पार्ट को ई के साथ ले लिए ई टू दी पावर अल्फा एक्स, और C1 इंटू ई टू दी पावर एक बार आई बीटा एक्स, C1 इंटू ई टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा, देखिए रियल पार्ट को हम लोग ई के साथ लगा दिए अल्फा एक्स प्लस C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू साइन, यहाँ पर बीटा प्लस बीटा और माइनस बीटा है ना, तो इसको लिखते हैं साइन बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों मेरा रूट्स है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C2। या फिर सबसे ज्यादा प्रचलित जो है मेरा, सबसे ज्यादा प्रचलित मेरा ये है, मैंने इसमें टिक भी इसलिए कर दिया है लास्ट वन। अगर इस तरीके से आपका दो रूट से अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका लिखते हैं, रियल पार्ट को पहले हम लोग ई टू द पावर अल्फा एक्स कर लेंगे, उसके बाद C1 इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा एक्स, मतलब जो भी प्लस आयोटा बीटा और माइनस आयोटा बीटा है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स कंजुगेट है और रिपीटेड है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी दिखाया था ना, कंजुगेट और रिपीटेड, मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा ही 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस आई बीटा का 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर अल्फा एक्स, ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू 2 बार रिपीट कर रहा था तो A1 प्लस A2x इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस B1 प्लस B2x इंटू साइन बीटा एक्स, ठीक है। या फिर इसको हम लोग C1 प्लस C2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से C1 प्लस C2x इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 इंटू C4x इंटू साइन बीटा एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक और टॉपिक है, इफ रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल मतलब रूट 5, मान लीजिए x इक्वल टू रूट 5 आ गया या x इक्वल टू रूट 7 आ गया, तब क्या करेंगे, तब कंप्लीमेंट्री फंक्शन में हाइपरबॉलिक फंक्शन के रूप में लिखाता है। देखिए तब उस केस में मान लीजिए कि अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, यहाँ पर आयोटा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिर्फ इरेशनल है, क्योंकि रूट आ गया मतलब कि इरेशनल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कुछ भी ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल कि C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस C2 इंटू ई टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स। या फिर सबसे इजी होता है आप इस फॉर्मेट में लिखो, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा है ना, तो C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स कॉस हाइपरबॉलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2, या फिर C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स साइन रूट बीटा एक्स प्लस C2। क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मूलाज। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम, ये क्वेश्चन है, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy बाई डी एक्स प्लस 15y। सो हमारा क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy बाई डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0, है ना। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और उसके बाद हम d बाई डी एक्स को, आपकी मर्जी, आप d भी मान सकते हो और m भी मान सकते हो, एज यू विश, ठीक है। सो टेक d बाई डी एक्स और पुट d बाई डी एक्स इक्वल टू d और m। चलिए, तो आपका ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम y को कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 d बाई डी एक्स प्लस 15, ये हो गया इंटू y इक्वल टू 0। सो इसको मैंने बोला m मानिए या फिर d मानिए, तो ये m का स्क्वायर माइनस का माइनस 8 का 8, ये m प्लस 15 इंटू y इक्वल टू 0। y को 0 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर उधर भेज दो, 0 बाई वाई 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज करो तो m माइनस 3 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू 3 और 5 आ गया। तो ये दोनों रूट्स क्या है, रियल है लेकिन अनइक्वल है ना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस C2 इंटू ई टू द पावर अल्फा इंटू अल्फा बीटा, मान लो रूट से अल्फा, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एक्स C2 ई टू द पावर बीटा एक्स, बस सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जल्दी से। क्या हमारा सॉल्व 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, y छूट जाता है इतना,
तो हम अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a पूरा सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है -1/2 -1/2। ये तो आप सॉल्व करना जानते हो, ठीक है। सो -1/2 -1/2, तो ये तो आपका क्या है, रियल है लेकिन रिपीटेड है, रिपीटेड है ना, तो ये हो जाएगा c, और रिपीट कितनी बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, तो c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर जो भी रिपीट कर रहा है वो रूट इंटू एक्स, तो रिपीट कौन कर रहा है, -1/2, तो -1/2 इंटू एक्स। आप बोलोगे मैम अगर ये 3 बार रिपीट करता, तो अगर ये ऐसा होता कि ये 3 बार रिपीट करता तो यहाँ पर होता c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बंद e टू द पावर -1/2x। क्लियर। चलिए, तो ये सब हमारा क्या निकल रहा है, y इक्वल टू मतलब क्या, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। ये भी हमारा क्या है, y इक्वल टू मतलब व्हाट, तो ये मेरा कंप्लीमेंट्री फंक्शन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, माइनस b, तो b की जगह में -4 है, तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो ये आपका +4 हो गया, प्लस माइनस इसको आप सॉल्व करोगे तो -36/2, ठीक है, /2। अब ये 4 प्लस माइनस रूट का मतलब i हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, /2 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 + 3i आ जाएगा। 4/2 यानी कि 2 प्लस माइनस 6/2 यानी कि 3i, यानी कि एक बार आपका 2 + 3i हो गया, एक बार आपका 2 - 3i हो गया। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स है, ठीक है, पहली बात। तो और दूसरी बात ये कि ये अनइक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, मैंने बोला था ना, इसका 4-5 केस मैंने बताया था, बट सबसे जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो हमारा क्या होता है, e टू द पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पर अल्फा के जगह पे 2 है और बीटा के जगह पे +3 -3 है, लेकिन आप इसको 3 टेक करो, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट है। इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है ना, इसका कंजुगेट ये और इसका कंजुगेट ये है, ठीक है। कंजुगेट किसको बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आपका +3i है, यहाँ आपका -3i है, रियल पार्ट एज वेल वही रहता है, ठीक है। सो ये हमारा ऐसा हो गया, क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा यानी कि 2x इंटू a cos 3x प्लस बीटा b साइन 3x, जहां पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व दिस, ठीक है। तो सॉल्व दिस, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका d4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 प्लस y इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। मैंने बोला था ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन कोई d से निकालता है, कोई m से निकालता है, तो इतना टाइम तक तो हम लोग m से निकाल रहे थे, चलिए एक बार हम d से भी निकालते हैं। सो ये आपका क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो ना, a स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू a मतलब d स्क्वायर और b मतलब 4, तो कुल मिला के इतना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो d स्क्वायर इक्वल टू -4, यानी कि d इक्वल टू -4 अंडर रूट। सो ये हमारा हो जाएगा +-2i +-2i। आप बोलोगे 4 बार क्यों लिखा, यहाँ पर मेरा सिर्फ +-2i ही तो होता, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, डिग्री 4 है ना, तो यहाँ पर 4 बार तो आएगा ना, तो एक बार +-2i, एक ही बार ना आता, इसके हिसाब से ये एक बार आता, +-2i, 4 का 2 -1 का रूट मतलब i और +-, लेकिन यहाँ पर डिग्री 4 है ना, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 बार लिखा, ठीक है। तो +2i भी 2 टाइम्स है और -2i भी 2 टाइम्स है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन सॉल्व बाय टेकिंग d इन प्लेस ऑफ m, यानी कि आप m के प्लेस पे d लेके भी चल सकते हो। अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अब देख लिया ना, +2i भी 2 बारी है और -2i भी 2 बारी है। चलिए सबसे पहले तो वहां पर क्या था, तो सबसे पहले वहां पर 2i सिर्फ था, यानी कि आपका रियल पार्ट क्या था, तो रियल पार्ट कुछ भी नहीं था, यानी कि रियल पार्ट आपका 0, तो e टू द पावर 0x, क्लियर, क्यों 0x, क्लियर ना,
चलिए, और 2i भी 2 बार रिपीट कर रहा था, -2i भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, यानी कि तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर C1 प्लस C2, लेकिन प्लस माइनस ही तो था, कंजुगेट ही तो था, तो कंजुगेट के +2i - 2i +2i - 2i, ठीक है। तो कंजुगेट के लिए क्या होता है a cos 2x प्लस b sin 2x, लेकिन यहाँ पर रिपीट कर रहा था 2 बार, इसलिए a के जगह में C1 प्लस C2x इंटू cos 2x प्लस C3 प्लस C4x इंटू sin 2x, ठीक है, क्योंकि वो रिपीट कर रहा था। क्लियर। तो ये आपका आप e टू द पावर 0 c का पावर 0 मतलब क्या 1, तो 1 को छोड़ दो, आपका सिर्फ ये हो जाएगा। ये क्लियर है क्यों हुआ? आपका रूट्स क्या था +-2i +-2i, यानी कि +-2i प्लस का माइनस कंजुगेट, अगेन प्लस का माइनस कंजुगेट। कंजुगेट के लिए यहां पर क्या आया, तो कंजुगेट के लिए a cos 2x प्लस b sin 2x ये आया। अब आप बोलोगे मैम e टू दी पावर नहीं आया, क्योंकि e टू दी पावर है ही नहीं, वहां रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, मतलब e टू दी पावर 0x आ गया, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि a के जगह में C1 प्लस C2, क्योंकि +2i भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था और -2i भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, तो इसीलिए, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट, d2x बाई dt², यहाँ पर t का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पर हम x लेते हैं ना, जैसे हम लोग ये लेते हैं ना कि e टू दी पावर अल्फा x, तो यहाँ पे t है ना, यहाँ पे t है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे e टू दी पावर अल्फा t। ये पता है क्यों किया, क्योंकि EEE का जो होता है ना, वो हमेशा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही वो लोग निकालते हैं, तो वो हमेशा ना n का ही मैक्सिमम टाइम वो t का ही फॉर्मेट होता है, तो एक वो लोगे के लिए, ठीक है। चलिए, सो d2x बाई dt² प्लस n² x इक्वल टू 0, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर x कॉमन निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं ना, सो d2 बाई dt² प्लस n² ब्रैकेट x, तो ऑक्सिलरी जब निकालते हैं तो डायरेक्ट ही हमारा d² हो जाएगा, ये n² हो जाएगा इंटू y इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी में इंटू y को हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट d² प्लस n² इक्वल टू 0, यानी कि d² इक्वल टू माइनस ऑफ n², यानी कि d इक्वल टू प्लस माइनस ni, यानी कि 0 प्लस माइनस ni। आप ध्यान दीजिएगा ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर सबसे पहले आपका 0 कुछ भी नहीं, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 0x इंटू a cos t डालिएगा, x मत डालिएगा, ठीक है। सो a cos nt, जो हमारा ये इमेजनरी पार्ट है nt प्लस b sin nt, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एक और छूट गया जो हमारा था ये का क्या था, इरेशनल था। तो इरेशनल में कुछ भी नहीं, सपोज आपका √3 आपका है रूट, ठीक है, x का वैल्यू मान लो आपका √3 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है, यहाँ पर आई नहीं है, आई होता तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता, लेकिन आई नहीं है, तो x इक्वल टू मान लो √3 है, दिखा आपको। चलिए हम लोग उसी में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ रूट्स आर इरेशनल, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ √3 लिया था, ठीक है, सिर्फ √3 था, तो क्या हो जाएगा C1 इंटू e टू दी पावर, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, इसका मतलब ये 0, C1 इंटू e टू दी पावर 0x साइन हाइपरबॉलिक √3x प्लस C2, बस, ठीक है, क्लियर। या फिर आप कॉस वाला सिस्टम भी ले सकते हो, ठीक है। तो C1 इंटू e टू दी पावर 0x, यहाँ क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ √3 लिया था, वो तो प्लस माइनस तो होगा ही, ठीक है, प्लस माइनस तो होगा ही, सिर्फ मैंने क्या लिया था, सिर्फ √3 लिया था, मतलब प्लस माइनस √3 था वो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कुछ भी नहीं था, मतलब अल्फा की जगह पे 0, तो C1 इंटू e टू दी पावर 0x, यानी कि का पावर 0 इंटू x मतलब 0, तो ये तो फिर पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिंपली आप लिख सकते हो C1 इंटू कॉस हाइपरबॉलिक √3x प्लस C2, क्लियर। सो दिस इज योर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीटेड। एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।